लाइफ प्रोसेस हाँ इस बार सीखते रहो, थोड़ा मजा लेते रहो। हाँ वो आप ये बोलो ना हमें भी हम लोग हम खाएं तो आप हमें नहीं हकीकत बात है आप कहते जाओ तो समझ में आता है कि इतना सब कुछ समझ में आया आप नहीं वो बड़ा चीज़ है लेकिन गहरे में तैरने वाली ऊपर के तैरने वालों की तारीफ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। इसीलिए देखिए वो उसकी वजह है वो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ बैठे बहुत अच्छे देवयानी है प्रोग्राम में शुरू हो जाएंगे बहुत अच्छा बात कुछ ही हो गया एकदम अक्षय कुमार लग रहे हैं। सर आपके राइट में देखिए ना, यहाँ सामने सर ये कैमरा सर थोड़ा लेफ्ट रखना ये सर इधर सर यहाँ पे तो एक साथ में अच्छे लग रहे हैं आप थोड़ा सा यहाँ सर यहाँ देखिए ना राइट में सर आपके राइट में सकती है यहाँ सामने सामने सर अनूप सर सामने सर लेफ्ट इधर अनुप से यहाँ पे या शुक्रिया सर यहाँ से सर यहाँ सामने सर लेफ्ट लेफ्ट यस सर एक फोटो करवा दीजिए एक साथ में हटाइए जरा। सर यहाँ देखिए पीछे सर यहाँ पे अनुप जी तीनों सर सर रुकिए ना सर रुकिए सर सर यहाँ देखिए सर यहाँ देखिए सर एक मिनट सर सोलो पिक्चर साहेब इकडे बघा सर थोड़ा ऐसे क्या तुमच्या उजव्या साईडला वो काम में बोला था शांत सर हाँ बस ये बरोबर ये परफेक्ट सर लेफ्ट में देखिए ना सर लेफ्ट में सर लेफ्ट में है सर इकडे इकडे समोर समोर नंतर एक बार बैगन खा जाएंगे
out. Ladies and gentlemen, how can it not when the founder of it is right here with us, the Gajendra Singh Ji, who is a big platform, who has created such a big platform for all the superstars of music industry, and he's groomed them, he's mentored them. I think a big congratulations, lots of good luck for him, and let's congratulate him with a huge round of applause. Well, he is the music man who has revealed. There are a lot more stars that's going to be coming into the industry, and we're all going to be crossing our fingers to wait who else is going to come out in a shining way from Saregama Music Academy. And before we can get there, let's begin today's meet with the most auspicious gesture of lighting of the lamp. So I request our esteemed guests sitting here to kindly come ahead and light the lamp. A very good afternoon to all of you who are present here, including our guests at the podium, our distinguished faculty in the audience, and my friends from the media. I welcome you all for the major milestone in our journey, and will be sharing a brief introduction about our company, Sai Baba Telefilms, and its various endeavors. The media and entertainment industry has grown by leaps and bounds over the past few years, and there have been very few organizations that have enjoyed the consistency in their creative endeavors and managed to be an integral part of this industry by delivering the best. Sai Baba Telefilms certainly leads the pack. Sai Baba Telefilms began a journey about a decade ago as the brainchild of Mr. Gajendra Singh, a pioneer in the music industry and also known as the Music Man of India. His vision and sheer determination has revolutionized the music industry. Over the past decade, he has created some of the biggest musical IPs, thereby redefining how music is consumed on Indian television. He is certainly the man behind some of the biggest musical shows like Saregama, Antakshari, Sukshetra, Music Ka Mahamukabla, India's Raw Star. Under his leadership, Sai Baba Telefilms has delivered more than 50 properties across various regions. Beyond what is expected, we have extended our global footprint by making our presence felt in event management too. Stellar Events is our event vertical based out of Dubai, offering complete event planning solution, and few of the IPs that we have executed are Colorland, Starlight, and Sarkways. Probably this year you can expect a lot more action on Dubai front. Taking the legacy further, we are also now embarking on a new musical journey with state-of-the-art facilities and most distinguished names from music fraternity as our mentors. Saregama Music Academy is an initiative to bridge the gap between the abundant talent repertoire present in this country and the music industry. This academy is built on the strong commitment for shared passion, vision, and expertise, with a very customized and personalized course structure that will develop each of our students into a complete digital artist. At Saregama, we aim to bring together global talent by diminishing the physical boundaries and creating a learning culture that goes beyond any demographic. It will act as a platform for the world to showcase their talent on a large scale. This will be executed by introducing a virtual academy to connect and learn from any part of the world. In our continuous endeavor to build Saregama Music Academy as a holistic hub of learning and cultivating talent all across the world, we would be taking our belief forward by bringing across international collaborations. Lastly, on behalf of Sai Baba Telefilms, I would like to thank each and everybody who is present here
for their continuous support, belief, and guidance as we embark on this journey of musical excellence. Thank you, gentlemen. Thank you. Thank you, Mr. Pierce. Thank you very much for the share a few words with all of us. Bilkul, good afternoon, everyone. For me, this afternoon has turned out to be an even greater surprise, an even greater memory that I'm going to take back with me. गज्जी ने कहा था कि आना है, मैंने ज़्यादा कोई सवाल पूछा नहीं, मैं बोला बस पहुंच जाऊंगा, तो बस आई डिडंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. लेकिन यहाँ आकर मेरी माय एंटायर पास्ट, जिन लोगों ने मेरी जो कुछ भी हुई है ज़िंदगी में, करियर जो भी बनाए हैं, वो सारे यहाँ मौजूद हैं. और इन सब को देखकर आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक, फीलिंग वेरी हम्बल्ड, और अजीब भी लग रहा है इस मंच पे के साथ इस तरह से बैठना. लेकिन गज्जी के साथ ही शुरू करूँगा, क्योंकि गज्जी जब मुझे टेलीविज़न में बतौर होस्ट का उन्होंने सिलेक्ट किया, मैं इतनी ये जो मैंने जो कुछ भी अब तक कहा है हिंदी में, ये शायद 4 दिन लगते हैं मुझे कहने में, और उसमें लगता मुझको कहना में और क्या क्या कहता पता नहीं. लेकिन उनमें फिर भी मुझ में कॉन्फिडेंस दिखाई उन्होंने, और मुझे सारेगामापा में एज होस्ट उन्होंने सिलेक्ट किया, और बोली कि उससे पहले तुम्हारी ट्रेनिंग भी शुरू करनी है. और सबसे पहले मुझे मेरे गुरुजी उस्ताद गुलाम सुबह खान साहब के पास भेजा, और द रेस्ट एज दिस इज हिस्ट्री. और मुझे न सिर्फ मेरे गुरु मिले, मुझे मेरे पिता समान एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे म्यूज़िकली तो गाइड किया ही, लेकिन साथ साथ ज़िंदगी में कैसे लोगों से पेश आना है, किस तरह से ज़िंदगी को देखना है, किस तरह से अपने लक्ष्य को एक अलग सक्सेस से परे होकर विद्या की तरफ लक्ष्य को रखना है, ये सारी चीज़ों की इतनी सोच दी, ज्ञान दी कि आई फील दैट इवॉल्व्ड अंडर हिज गाइडेंस. लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाऊँ तो गौतम नॉट चक्रवर्ती बट हमारे गौतम मुखर्जी जी माय डियरेस्ट एल्डर ब्रदर मैं कह सकता हूँ, और फैमिली फ्रेंड कह सकता हूँ कि तब मैं इतना सीरियस नहीं था म्यूज़िक में, लेकिन मेरी सिस्टर सागरिका उनसे जब सीखती थी मैं भी बैठ जाता था उनके साथ, और वी हैड अ वंडरफुल, मतलब वो मेमोरीज कभी नहीं भूल सकता. और वो बचपन के दिन इट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस. साथ साथ अनूप जी, जिनके साथ पहली बार मैं कभी अगर किसी का कॉन्सर्ट देखा तो इट वाज अनूप जी कॉन्सर्ट. और बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं ललित जी के साथ. ऑफ कोर्स वी आर नाउ मोर लाइक बडीज, बट आई ऑलवेज उनके म्यूज़िक, आई हैव ऑलवेज बीन अ डाई हार्ट फैन ऑफ द जनरल ललित ब्रांड ऑफ म्यूज़िक. पंडित जी ने इतना अपनापन और प्यार दिया है, पंडित पहुंकर जी, तो सब अपने ही हैं, और आई एम सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. सॉरी मैं अपनी बात ज़्यादा कह गया, अनुज जी भी यहाँ हैं, लेकिन वाकई फॉर मी इट वाज अ वेरी पर्सनल वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी हियर दिस इवनिंग. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि गज्जी मीन्स अ लॉट टू मी. गज्जी के वजह से ही जो कुछ भी हुआ है टेलीविज़न के इंडस्ट्री में मेरे लिए. तो वो जो कहेंगे सर आँखों पर, जो चाहेंगे आई एम ऑलवेज देयर फॉर हिम, लाइक ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी. Thank you very much, Shan, for lovely and sweet words. Thank you. And now I request Lalit Pandit ji to kindly share a few words with everybody. मेरे जितने बुजुर्ग हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम. गुरुजी खान साहब, अजय जी, अनूप जी हमारे बड़े भाई, और शान मेरा बहुत अच्छा छोटा भाई और दोस्त दोनों है. बहुत ही खुशी की बात होती है जब कोई अपना आगे बढ़ता है और कुछ अच्छा करता है. गज्जी के बारे में और गज्जी के काम के बारे में क्या ज़्यादा बताना, पूरी दुनिया जानती है. मैं कुछ बातें ये इसलिए कहना चाहूँगा कि वो फोकस होनी चाहिए, क्योंकि गजेंद्र जी वो इंसान हैं जिन्होंने टेलीविज़न इंडस्ट्री में कई चीज़ें ईजाद की है और जिसको दूसरे चैनलों ने फॉलो किया है. तो ऐसी बुद्धि रखना, और इसमें नो वंडर गज्जी का जो इंटरेक्शन है विद म्यूज़िक फ्रेटर्निटी बहुत ही क्लोज है. इन्होंने पूरी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी की जो एक अस्तित्व है, जो एक पहचान है, वो बहुत उठाई है एक किस्म से. और ये भी कहूँगा कि हज़ारों लोगों को इन्होंने ऐसा मौका दिया है बॉम्बे आने का, सीखने का म्यूज़िक, जो कभी शायद नहीं हो सकता था, और फिर बॉम्बे में सेटल होके कहीं ना कहीं अपना म्यूज़िकल करियर बढ़ाने का. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जो कि इतने सारे सिंगर्स पूरी हिंदुस्तान से और बाहर से भी, मैं कहूँगा हिंदुस्तान से बॉम्बे में आ जाएं और वो कंपोज़र से मिलें और काम करें.
ये जो चेंज आया इंडस्ट्री में, इसमें गजेंद्र सिंह का बहुत हाथ मैं मानता हूँ। और ये कहूँगा कि ये जो एकेडमी है गज्जी की, इसमें सबका, हम सबकी खुशी शामिल है। और म्यूज़िक फ्रेटर्निटी जो हमेशा गज्जी को बहुत रिगार्ड करती है, हम सब इनके साथ हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट गजेंद्र सिंह जी योर एकेडमी। और जब भी हम सब की कभी ज़रूरत हो, आपके पास तो बहुत अच्छी टीम है ही ऑलरेडी। अनुज जी हैं जिन्होंने काफ़ी हमारे साथ जो अर्लियर सीरीज़ हुए हैं गजेंद्र सिंह जी के, उनके साथ हमारे अनुज जी ने बहुत मेहनत की थी। गौतम जी हमेशा रहे हैं साथ में। तो ये बहुत ही प्रोलिफिक टीम है जो काम करेगी नए लोगों के साथ, और बहुत ही अच्छी एकेडमी है। इस एकेडमी का मुझे लगता है बहुत लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए इसे ज्वाइन करके। और ये भी देखना चाहिए कि कितने अच्छे बड़े बड़े गुरु इसमें शामिल हैं। अगर बच्चे और आगे सीखना चाहे तो हम सब हैं, अपने हिसाब से हम ज़रूर हेल्प करेंगे जहाँ भी गजेंद्र सिंह जी को लगे। अनुज जी हैं। और मैं आई विश दिस इवेंट एंड द एकेडमी ऑल द बेस्ट। माई बेस्ट विशेज़ आर विद गजेंद्र सिंह जी। Thank you, Lalit ji. Thank you very much for such supportive words and all the encouragement that you gave to us. Thank you very much. Means a lot for all of us. And with that, ladies and gentlemen, now I request Anup Jalota ji to kindly share a few words with all of us. गजेंद्र सिंह जी, इन्होंने एक ऐसी राह यहाँ सिंगर्स को दिखाई है कि हज़ारों बच्चों ने ये फैसला किया कि हम म्यूज़िक करियर बनाएंगे। वो उत्साह किसने दिया, वो हिम्मत किसने दी? वो हिम्मत गजेंद्र सिंह जी ने दी। वैसे कहते हैं कि हाथी धीरे चलता है, गज का मतलब हाथी होता है, लेकिन इनकी जो रफ्तार है वो बड़ी तेज़ है। ये बहुत तेज़ चलते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, कितना लोगों को सपोर्ट करते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। गलत मार्ग दिखाने से सिंगर्स जो हैं वो भटक जाते हैं, सही जगह पहुंच नहीं पाते। लेकिन गजेंद्र जी ने अपने रियलिटी शोज़ के माध्यम से सही रास्ता दिखाया, सुगम रास्ता दिखाया, सरल रास्ता दिखाया, जिससे कि सिंगर्स अपने को स्थापित महसूस करने लगे। गांव-गांव से आए हिम्मत बढ़ाकर और यहाँ पर स्टैब्लिश हुए। ये जो कंट्रीब्यूशन है वो गजेंद्र जी का कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। जितने भी रियलिटी शोज आ जाएं, लेकिन इन्होंने जो शुरुआत की थी वो मुकुट जो है वो गजेंद्र सिंह जी के ही सर पर है। तो सही मार्ग दिखाना कितना ज़रूरी होता है। मुझे इस पे एक वाकया याद आ गया कि एक साधु महात्मा जी एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे उतरे किसी गांव में, तो वहाँ एक बच्चा स्कूल जा रहा था बस्ता लटकाए हुए। तो उन्होंने उस बच्चे को रोका कि बेटा यहाँ पोस्ट बॉक्स कहाँ है, ज़रा हमको दिखा दो, मुझे एक चिट्ठी डालनी है। उस बच्चे ने कहा आइए महाराज आइए। वो लेके गया साथ में और जहाँ दिखा दिया ये पोस्ट बॉक्स है, उन्होंने चिट्ठी वहाँ डाल दी। फिर वो बच्चा जाने लगा तो उन्होंने रोक लिया, बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम मुझे यहाँ पे लेके आए, तुमने पोस्ट बॉक्स तक मुझे पहुँचा दिया, तो तुम ऐसा करना कि कल सुबह 10 बजे सिटी पार्क में आ जाना अपने पेरेंट्स को लेके, मैं वहाँ पे भाषण देने वाला हूँ। तो बच्चे ने पूछा आप किस चीज़ पे भाषण देने वाले हैं? कहते मैं इस चीज़ पे भाषण दे रहा हूँ कि भगवान तक पहुँचने का सबसे सुगम रास्ता कौन सा है। तो बच्चे ने कहा कि महाराज जी आप इसी ट्रेन से वापस चले जाइए, आपको पोस्ट बॉक्स तक का तो रास्ता पता नहीं। अब कहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भगवान तक पहुँचा देंगे। तो सही रास्ता बताना भी एक बहुत बड़ी योग्यता होती है। तो ये जो सही रास्ता है ये हमारे गजेंद्र सिंह जी ने बच्चों को बताया है और आज बच्चे यहाँ स्टैब्लिश हुए हैं। आज शान जी की जो लोकप्रियता है वो हम सब जानते हैं। ये जहाँ जाते हैं शान से जाते हैं, भीड़ लग जाती है, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि गजेंद्र जी ने इनकी योग्यता को समझा और मंच पे, दूरदर्शन पे, टीवी चैनल्स पे इस तरह पेश किया कि लोग खुश हो गए, आनंद हो गए।
और इनको शान जी को तो ये मिलना ही था, क्योंकि इनके माता पिता की बड़ी तपस्या थी, वो फल तो मिलना ही था। देर सवेर मिलता है, लेकिन भगवान जो है वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता है। जहाँ भी मानस जी बैठे होंगे वो इतने खुश होंगे कि मैंने जो मेहनत की, जो मैंने फसल लगाई, उसको मेरा बेटा बहुत अच्छी तरह से सजा कर संवार कर आनंद ले रहा है। हमें बहुत खुशी है कि इस प्रकार ईश्वर हरेक को फल दे, आनंद दे। गजेंद्र जी को शुभकामनाएं देता हूँ। यही चाहता हूँ कि भाई इसी तरह इस काम में आप लगे रहिए, हम सब आपके साथ हैं। शुक्रिया। Thank you very much. Thank you very much, Anup Jalota ji, for this long-lasting relationship that you've had with all of us, Gajji, Saregama, Music Academy, and of course Sai Baba. And I personally thank you for helping the whole world strengthen our relationship with God with such beautiful bhajans. Thank you very much. Now, ladies and gentlemen, I request Dr. Pandit Ajay Pahankar ji to kindly share a few words with everybody. सब कुछ बोला गया है गज्जी के लिए, और इतना अच्छा और सही बोला गया है कि मैं क्या बोलूं। और जितने भी हमारे खासा बुज़ुर्ग, हमारे अनूप जी, ललित भाई, शान भाई, गज्जी और आप सब लोग जितने बैठे हैं, बस बच्चों को आशीर्वाद देते रहिए और सही गाइडेंस दीजिए। अभी भटक रहे हैं बच्चे, आई एम सॉरी, मतलब एक दिन में उनको 2 फ्लैट चाहिए, 4 मर्सिडीज चाहिए, ये सुर नहीं चाहिए मतलब। तो इस एकेडमी में सुर और लय यही घराना होगा, ऐसा मुझे लगता है। और गज्जी डेफिनेटली उसकी तरफ ध्यान देंगे। और अनूप जी वगैरह कितना सुंदर अभी बोले, मैं क्या ज़्यादा बताऊं आपके लिए। ऐसा बोलते हैं भगवान के लिए ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है। तो आपने जितना किया है सब, ये रियलिटी शोज़ में कितना गाइडेंस आपका मिला है। कई लड़के तो छोड़ के घर छोड़ के भाग आए वो। बस यही शिकायत उनके माता जी से, पिताजी की, कि गज्जी बहुत जल्दी बुला लेते सबको। लेकिन ये एकेडमी बहुत अच्छी चलेगी। और गज्जी, thank you very much, and we all blessed for this academy, and nice to be here. Thanks a lot. Thank you, Pahankar ji. Thank you very much. Your words mean a lot to all of us, and no doubt you've mentored so many. You just said the right words what all the youngsters need. Thank you very much. And now I request Ustad Ghulam Mustafa Khan Sahab ji to kindly share a few words with everybody. मंच पर बैठे हुए तमाम कलाकार और सारे सुनने वाले लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर दुआ करें, गजेंद्र सिंह की एकेडमी वो काम करे जो वो चाहते हैं और जो हम चाहते हैं। इन्होंने जो रास्ता सारे चैनलों को दिखाया, इससे पहले सारेगामा नाम की कोई चीज़ टेलीविज़न पे नहीं आई। और सारेगामा या डोरे मी फा सोले टीडो, ये सब चीज़ जो हैं ये नाम हैं, लेकिन सुरों के नाम अलग-अलग उसमें हैं, लेकिन सुर और लय का नाम ही म्यूज़िक है। और लैंग्वेजेस जस्ट लाइक द रेस्ट। तो हम अलग-अलग भाषाओं में गाना गाते हैं। और मैं समझता हूँ, मेरा एज ए विद्यार्थी, मैंने इतनी मेहनत करने के बाद, बूढ़ा होने के बाद भी महसूस किया कि सारी उम्र भी मेहनत करने के बाद में इंसान विद्यार्थी रहता है, और जो विद्यार्थी नहीं होता वो कलाकार नहीं बन सकता। लिहाजा मैंने ये एहसास किया, और मेरे बुजुर्गों ने भी मुझे बताया कि हवा की स्क्रीन पर आवाज़ के कलम से दिल के जज्बात को लिखने का नाम म्यूज़िक है। क्या बात है। तो लैंग्वेजेस जो हैं वो कोई भी हो सकती हैं, और कोई भी अपनी लैंग्वेज में भाव व्यक्त कर सकता है। लिहाजा हमारे गजेंद्र से मुझे बड़ा प्यार है। इन्होंने सारे चैनलों पर पहली दफ़ा
सारे गामा नाम का एक सब्जेक्ट शुरू किया और अब तो सारे चैनलों के ऊपर होड़ लग गई है। मैं इनके साथ लंदन भी गया था, इन्होंने दूसरी जगहों पर भी अरेंज किया और अब ये एकेडमी खोल रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनकी एकेडमी को अल्लाह खूब बरकत दे और हमारा जो इन्होंने सारे गामा नाम रखा है, जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक की शुरुआत है, अल्लाह इसको काफ़ी आगे बढ़ाए और हमारे स्टूडेंट्स को भी आगे बढ़ाए और खूब हिंदुस्तानी म्यूज़िक का और हिंदुस्तान का नाम करें। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much for all your blessings and supportive words. Thank you. Now I request Gajendra Singh ji to kindly share a few words with everyone. थैंक यू सो मच सर। आप लोगों के बारे में क्या कहूँगा, मुझे सौभाग्य मिला कि आप लोगों का वेलकम कर सकूँ यहाँ पे और आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया है। आप लोगों की बदौलत से सारेगामा इस ऊंचाइयों तक, इस बुलंदियों तक पहुँचा। तो मुझे सौभाग्य है शांत कि आपने उस शो को होस्ट किया है और मतलब मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन आपने जब भी बुलाया है, जिस तरह से बुलाया है, आपने हमेशा मतलब बिना कुछ कहे हुए अपने सहयोग किया हुआ है शांत। तो मेरे पास बहुत कम शब्द है, मैं बोलता नहीं हूँ, कैमरे के पीछे बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ललित जी, थैंक यू सो मच सर। मतलब आपने हमेशा मेरी बात रखी है, मेरी को सम्मान दिया है मुझे, तो थैंक यू सो मच सर। अनुप जी, दिल से मतलब बहुत 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 मतलब मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए कि, लेकिन मैं मतलब तहे दिल से पूरी टीम से की तरफ से, अकेडमी की तरफ से, अपनी तरफ से आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का लेते हुए धन्यवाद करता हूँ। अजय जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। हाँ साहब, बहुत मतलब मैं कैसे कहूँ कि आज हमारा सौभाग्य है कि खान साहब हमारे पीछे बैठे हुए हैं, हम सब लोगों के पीछे बैठे हुए हैं, हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। सारेगामा में जब मैंने पहली बार सोचा था कि किसी क्लासिकल को बुलाऊंगा, तो खान साहब के पास हम लोग आए थे, उनसे पूरा समझाया था और खान साहब ने मतलब स्वीकार किया था कि चलो बेटे चलते हैं, और वहाँ से फिर एक और सिलसिला शुरू हुआ सारेगामा का। तो मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे कहूँ, हमारे जितने एकेडमिक सब लोग हैं, अनुज जी आपसे तो शुरुआत हुई थी उस म्यूज़िक सफ़र का। दादा थैंक यू, राघव, तोशी, शारिब, बिल्कुल मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेता हूँ और दुआ लेता हूँ कि एकेडमी भी उसी तरह से काम करे जिस तरह से म्यूज़िक शो में मतलब एक लोग आते हैं, अपनी बात कहते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर हमने सोचा कि एकेडमी में बना करके आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद लेने का एक मौका मिलेगा, कहने का कुछ मौका मिलेगा, उनको कुछ और हम लेवल पर लेके जा पाएंगे, सबको एक सीखने सिखाने का, एक अपना अध्ययन करने का मौका मिलेगा। तो मैं सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया और मेरे बुलावे पर, मेरी टीम के बुलावे पर आप लोग आए। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Gaji. Thank you so much, I must say, for always identifying the right talent and, putting them into this whole limelight and highlighting their talent. Thank you so much for giving us such big stars in the industry, and now he has a whole big academy. And बहुत बहुत खुश हूँ कि यहाँ हूँ आप लोगों के साथ में। गज्जी के बारे में जितना भी कहेंगे कम है, और सब लोगों ने इतना कुछ कहा है। गज्जी मेरे नेबर हैं और अब आप देख रहे हैं गज्जी को, हाउ ही कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स, हाउ ही हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ ऑल्सो। यू कैन सी दैट, आई एम श्योर एवरीबडी कैन सी दैट। सो व्हाट ही इज़ डूइंग इज़, पहले से ही लेके वो टैलेंट को प्रमोट करते हैं, टैलेंट को बढ़ावा देते हैं। लेकिन क्या होता है, सारेगामापा या ऐसी जगहों पर जाके टैलेंट जाते हैं, एक 3-4 महीने का एक उनका टाइम फ्रेम होता है जहाँ पे रियाज होता है, बहुत एक ऑटोमेटेड चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप बच्चों को सिखा रहे हैं, फिर वो परफॉर्म कर रहे हैं, फिर वो सीख रहे हैं, फिर वो परफॉर्म कर रहे हैं। हर एक वीक एक पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसके ऊपर उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। बट एन अकेडमी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। दे आर पुटिंग इन देयर ओन हार्ड अर्न मनी टू लर्न। उसमें एक बहुत डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर आ जाता है कि आप जब अपना खुद का पैसा लगा के, खुद का पेरेंट्स आपके पैसा लगा के कुछ करते हैं,
तो आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट बहुत बढ़ जाती है। मैंने जब अपनी एजुकेशन की थी ऑस्ट्रेलिया से, उसके पहले आई वुड नॉट टेक म्यूज़िक दैट सीरियसली, लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पेरेंट्स ने इतना पैसा खर्चा है मुझे बाहर भेजने के लिए, इतने इंस्ट्रूमेंट्स लेने के लिए, तो आई गॉट वेरी हैसल्ड कि आई हैव टू डू समथिंग एंड मेरी कुछ मॉरल ड्यूटी बनती है। तो ये जो गज्जी कर रहे हैं, दिस इज़ अ ह्यूज डील, क्योंकि जितने भी बच्चे पढ़ेंगे दे आर नॉट ओवर देयर टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, दे आर देयर टू लर्न म्यूजिक एंड दे आर देयर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंस्ट्रूमेंट दैट दे आर लर्निंग। एंड उस टाइम फ्रेम में जितनी उनकी बढ़ोतरी होएगी वो कभी भी दोबारा नहीं होएगी। तो गज्जी, congratulations and my heartiest congratulations and all the best for everything that you do. You do everything so stylishly and so well that this is also going to be a resounding success. Congratulations. Toshi. Paul, इतने बड़े-बड़े लोग यहाँ बैठे हैं. I'm also feeling the same thing which you said, Raghav. It's a great honor to be here, the part of this beautiful platform, and all the Gunijans, अपने बड़े-बड़े गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा गज्जी आपके साथ रहा है. And I must say that Gajji, the only man who started this entire journey. If I say that Gajji, the father of all the reality shows and all the music platform, big platform in this industry, so ये गलत नहीं होगा. और उन्होंने ये सब शुरू किया है और आज हम दोनों भी, शारिफ भी मेरे साथ है, आई वुड लाइक टू कॉल हिम ऑल्सो, देन हम दोनों यहाँ पर मौजूद हैं. हाँ, वी आर द एग्जाम्पल्स बेसिकली कि वी स्टार्टेड आवर करियर विद रियलिटी शोज with Gajji only, and me and Sharif both as a contestants are now working touchwood by the grace of God, आपके आशीर्वाद से, आप सब बड़ों के आशीर्वाद से, थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत जो भी किया है ज़िंदगी में. सो ये एक एग्जांपल्स है हम सबके सामने, और ऐसे कई सारे लोग हैं, इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एज ए म्यूजिशियन स्टैब्लिश करने में जो कराने वाली ज़ात है वो ऊपर वाले की है, मगर गज्जी का हाथ रहा है. ऐसे कई सारे लोग हैं कि ऐसे म्यूज़िक इंडस्ट्री में और म्यूजिशियन स्टैब्लिश कर दिया है लोगों को. तो ये इनका हार्ड वर्क है, ये इनकी मेहनत है, कड़ी मेहनत है, और ऐसे ग्रेट इनिशिएटिव दैट गज्जी स्टार्टेड द अकेडमी, सारेगामा अकेडमी, एंड ऑल द बेस्ट विशेस. मतलब मेरी तरफ से सारी दुआएं और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ये कामयाबी का एक नया इतिहास लिखे, और बहुत सारी दुआएं. एंड थैंक यू एवरीवन, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आप सब गुणीजनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मौजूद हैं यहाँ, और हम जैसे बच्चों के सर पर आपका हमेशा हाथ रहे. थैंक यू वेरी मच. एज राघव, माय ब्रदर एंड खुशी भाई सेड, एवरीथिंग बोल दिया इन लोगों ने जो भी बोलना था. एंड मैं सिर्फ दो ही चीज़ें बोलूँगा. सबसे पहली चीज़ कि बहुत खुशी है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आपके सामने, इतने बड़े बड़े गुणीजनों के सामने आके यहाँ पर बैठ के. एंड गज्जी जो भी करते हैं बहुत फैंटास्टिकली करते हैं, और बचपन से रिश्ता रहा है. बहुत छोटा था मैं जब सारेगामा में आया था, और काफ़ी डांट भी खाई है गज्जी से जब सारेगामा में रहा हूँ मैं भी, तोशी भाई भी. तो एक बहुत खुशी का मौका है ये, और जिस तरह से इतने सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बनाई गई हैं गज्जी के ज़रिए, उनके एफर्ट्स के ज़रिए, उनके कामों के ज़रिए. तो ऐसी मेरी दुआ है कि सारेगामा अकेडमी जो है वो भी बुलंदियों तक पहुँचे, और बहुत सारे नए टैलेंट, नए स्टार्स, नए सुपरस्टार्स हमको मिले. विशिंग यू वेरी वेरी गुड लक सर. Thank you very much, Sharif, Toshi and Raghav, for all your kind words and wishes. Thank you very much. You know, you're the one, as you know, as he said very rightly, you're the father of so-called music reality show in the industry. आपके जहन में कैसे आया कि एक एकेडमी खोलनी चाहिए जहाँ संगीत से रिलेटेड सिखाया जाए, ना कि रियलिटी शो? हाउ यू गॉट दिस आइडिया, और हाउ यू प्लान एवरीथिंग, एंड हाउ द पीपल केम ऑन बोर्ड? एक्चुअली एकेडमी आज की बात नहीं है, जब हमने 2006 में इसकी मतलब कल्पना की थी, और तभी से चल रहा है, और इसको आज हमने रीलॉन्च किया एक बड़े बृहद रूप में. तो सारेगामा से हमने देखा कि लोग आते हैं, बच्चे 3-4 महीने सीखते हैं, हमारे पास में चले जाते हैं. और एकेडमी मुझे लगा कि एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आएंगे, साल भर रहेंगे, 1.5 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, अपना समय बिताएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे. तो हमने एकेडमी के माध्यम से ही सोचा, और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. शान, मेरा सवाल आपसे है
आई होप यू कैन हियर मी। क्या कहना चाहेंगे, इस एक नई शुरुआत है, जब हम रियलिटी शो की बात करते हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू नो, आई होप एवरीवन टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। जैसे अभी किसी शख्सियत ने कहा कि रातों रात कोई स्टार हो जाता है रियलिटी शो में जाके। बहुत कम लोग टोशी या शारिफ जितने यू नो डाउन टू अर्थ रहते हैं, लेकिन अचानक स्टारडम मिलने से सब हो जाता है। इस एकेडमी में क्या खास होगा और आपको क्या लगता है कितनी अच्छी शुरुआत है? एक तो रियलिटी शो के साथ एकेडमी को कंपेयर करना ही गलत है, क्योंकि रियलिटी शो, जैसे कि राघव ने भी कहा, कि 3-4 महीने का एक क्रैश कोर्स होता है। उसमें आपको बस उस एक सब्जेक्ट, एक गाने का एक जो परफॉर्मेंस होता है उसी पर, जैसे अगर उर्दू भी सिखा रहे हैं या लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो उसी गाने में अगर धोखा है या कोई धोखा बोल रहा है तो उसको बदल सकता है। बट इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक टू दैट 3 मंथ्स कि चलो कुछ ना कुछ करके वो गाना ठीक से गा जाए और वो जीत जाए कॉन्टेस्ट। लेकिन जब आप एकेडमी करते हैं तब उस पर ठोस एक पुख्ता लर्निंग का एक मौका मिलता है। आपकी जो फाउंडेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जैसे जैसे आप सीखते हैं, आप समझ में आपको ये बात आती है कि कितना कुछ और बाकी है सीखने के लिए। तो जो लोग अगर कम समझ या कम सीख से कुछ हो जाता है तो उनको लगता है बस दुनिया मिल गई। लेकिन जब एकेडमी में जाकर वो एक्चुअली सीखेंगे, जैसे हमारे इतने कमाल के सब गुरुजन हैं, उनको तब ऑटोमेटिकली वो जो एक जो आप कह रहे हैं डाउन टू अर्थ या फिर वो स्टार वाली फीलिंग वो नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता चलेगा कि और कितना कुछ बाकी है, समुंदर का एक कतरा भी नहीं मिला हमें। और वो जब तक वो एकेडमी नहीं जाएंगे वो बात नहीं बनेगी। तो यही फ़र्क होता है कई बार 3 महीने के क्रैश कोर्स और एक प्रॉपर एकेडमी में ज्वाइन करना। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, जहाँ आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव और स्ट्रॉन्ग होगी और आप एक लाइफ टाइम के लिए म्यूजिशियन बन सकते हैं इससे। हाँ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे शान ने जिक्र किया धोखा या शीन, यू नो, शरबत का गिलास या शरबत का गिलास। हाँ साहब, आपसे पूछना चाहूँगा सर, खान साहब से, मतलब ज़बान का बड़ा दखल होता है और उसके लिए क्या टिप्स देंगे एकेडमी को? ज्ञान अनंत है, और मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, और सब सीखने वालों से और गाने वालों से मैं यही कहूँगा कि अल्लाह आप सब लोगों को तरक्की दे और हमें आपको सबको सद्बुद्धि दे, सही मानों में म्यूज़िक कर सकें और सबको तरक्की दे, और हमारे मुल्क में खुशहाली आए। जहाँ खुशहाली होती है वहाँ गाना बजाना होता है, खूब गाना बजाना हो, बस दुआएं हैं मेरी, रात दिन गाना बजाना हो और खूब खुशियाँ आए हमारे मुल्क में। धन्यवाद। Gaji, on what ground you zeroed down the faculty member of the academy, you know? ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब, बट ये लोग जिनके साथ हमने कुछ सीखा है, ये लोग जिनके साथ हमारी भूमिका रही है इस एकेडमी को बनाने में, और ये लोग हैं जो सारेगामा के साथ हमने अपने आप को सीखा, तैयार किया है। तो इन सारे लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया, सारे लोगों ने हमारी बात मानी। गौतम दा हैं, गौतम दा के मतलब ऐसे अनुज जी हैं, इन लोगों के साथ हमने मतलब पूरा सारेगामा की जर्नी, पूरे सारेगामा को तैयार किया है। तो ये लोग, मुझे लगा कि मतलब जब सारेगामा में इतनी अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं तो एकेडमी में क्यों नहीं, और इसको और निखार करके, इसको और बेहतर बना करके आप सबके सामने सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। थैंक यू। ललित जी, सुशांत, am I audible? मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो यूरोपियन म्यूज़िक का और जो बाहर के म्यूज़िक का इम्पैक्ट आता है भारतीय सिंगिंग पर, स्पेशली डब स्टेप जैसी चीज़ें बहुत तेज़ हो गई हैं, रैप बहुत तेज़ हो गया है, तो क्या इसकी वजह से जो ओरिजिनल म्यूज़िक है बॉलीवुड सिनेमा का और भारतीय संगीत जो है, शास्त्रीय संगीत, उसको बहुत वो ख़राब होता है? क्या ऐसा होता है? देखिए, ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि ख़राब होता है, मगर ये है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। जब आप कंपोज करते हैं और जब आपको शायद कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो आपका एक विजन होता है कि आप उसको कैसे करें। और ये जो आप वेस्टर्न म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं, ये इस ज़माने से नहीं, ये बहुत पहले से है। और बड़े बड़े जो हमारे कंपोज़र हुए हैं, और म्यूज़िक कंपोजिंग चीज़ एक ऐसी है कि जिससे आपको मतलब इंस्पिरेशन आप ढूंढते रहते हैं। आप कोई साउंड से इंस्पायर्ड हो सकता है, या कोई किसी भी कोई छोटी सी मेलोडी हो, उसका कोई एक पोर्शन हो जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं, और उसको फिर आप डेवलप करते हैं अपने स्टाइल से। तो इंस्पायर होना तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, जहाँ तक एकदम कॉपी का सवाल है, वो गलत बात है, वो तो कॉपीराइट सोसाइटी भी अलाउ नहीं करती आपको, वो नहीं करना चाहिए।
और हम ऐसा सोचते हैं कि हर जो जनरेशन होती है या 5 या 6 इयर्स के बाद एक म्यूज़िक में चेंज आता है, एक दौर में एक नई चीज़ शुरू हो जाती है या कोई एक नया स्टाइल शुरू हो जाता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अभी भी आजकल भी कई मेलोडियस गाने इतने अच्छे होते हैं, जब आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, उसका एक नया अंदाज देखने को मिलता है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक तो एक इवॉल्विंग चीज़ है और जैसा खान साहब ने कहा कि अनंत है ये, तो इसको खोजते रहना चाहिए, इसमें सीखते रहना चाहिए, इसमें डूबते रहना चाहिए और जो चीज़ आपको इंस्पायर करे उससे ज़रूर एक रास्ता बनाना चाहिए। ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है, इसको पॉजिटिव स्टाइल में लेना चाहिए। शान जी, शान इधर इधर मैं इधर ही खड़ा जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि आजकल जो हिंदी म्यूजिक का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा पंजाबी हैवी हो गया है, आप ऐसा समझ? ये सब इतने सालों में इतने सारे गाने हुए हैं कि कंपोजिंग का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसमें फिर भी बहुत सारे स्कोप अभी तक बाकी है। नोट्स की जैसे आप समझ लीजिए डॉट डैट डिश के साथ पूरा मॉर्स कोड पूरा लिखा गया है, तो कितने उसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन शब्द तो उतने ही हैं। आप नए नए शब्द तो रोज़ याद नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वही एक्सप्रेशन जब आप हिंदी में इतने सालों तक देते आए हैं, उर्दू में या फिर कुछ अलग अलग लहजा वालों चीज़ों में लाते हैं, लेकिन फिर भी वो हो चुकी है। तो अब वही बात को मैं तुझे क्या समझाऊं सुन चुके, मैं तेनों समझावा की, तो कुछ अलग लग रहा है। तो शायद पंजाबी के बाद अभी लग रहा है कि पंजाबी भी काफ़ी सैचुरेट हो गया है। कुछ सालों में शायद उसमें कुछ गुजराती वाले ऐसे शब्द ले आएंगे या बंगाली आ जाएगी, या क्योंकि तमिल की चीज़ें हो सकती हैं कैची काफ़ी। तो इट्स जस्ट दैट, और ये तो एक ट्रेंड है जो बनता रहता है। पंजाबी इज़ क्लोज टू हिंदी और पंजाबी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में समझ में आ जाती हैं। शायद इस वजह से पंजाबी यूज़ हो रही है, और क्योंकि लैंग्वेज यू कांट कीप इवॉल्विंग, नए नए शब्द आप निकाल नहीं सकते, तो इसलिए वो हो रहा है। अब बस आखिरी सवाल सर, अनूप सर, आप मुझे पता नहीं था, हम थोड़ा सा बाद में आए थे, तो आप सामने बैठे हैं, हम सारे लोग हैं सर, कुछ आप अगर गुनगुना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। जरूर गा देंगे। वाह क्या बात है। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अब इसमें जो 2 पंक्तियां हैं, इसमें जो मैसेज है, जो शिक्षा है, उसको जो अपने जीवन में उतार ले तो उसका कल्याण निश्चित है। जिस घर में अंधकार, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो शान, मेरा सवाल आपसे है। शान, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि म्यूज़िक का ट्रेंड जो है काफ़ी बदल चुका है, तो आजकल जो है फिल्मों में जो है अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर यूज़ किए जाते हैं, 5 से 6, तो उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं म्यूज़िक की? एक्चुअली हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जिनको जो करना है वो करते रहेंगे, तो इसके बारे में हम कोई क्या कहें और हमारी कहने की वो कौन सुन रहा है वो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। हम आपस में ही डिस्कस करते सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर मुझे मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन आप कहें तो डेफिनेटली जब जैसे एक इमेजिन एक फिल्म आप बना रहे हैं और इस फिल्म में आप हर एक्शन सीन के लिए आप एक डायरेक्टर को लेते हैं, एक रोमांटिक सीन के लिए किसी और डायरेक्टर को लेते हैं, और सैड सिचुएशन हो तो किसी और डायरेक्टर को लेते हैं, तो फिल्म की क्या होगी आपको, आप यू कैन इमेजिन दैट ओनली, किसी को भी पता नहीं दूसरा क्या कर रहा है। तो उसी तरह से अगर म्यूज़िक को उतना सीरियसली लेते तो शायद ऐसा नहीं करते, क्योंकि इतने सालों से जिस तरह से एक फिल्म में एक प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर
प्रोड्यूसर तो खैर अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट एक डायरेक्टर अब तक रहा है। तो एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक पर भी एक ही इंसान या एक ही टीम काम करे तो दैट वुड बी बेटर। और जब भी जैसे ललित जी है, तोशी शारद भी बहुत सारे फिल्में की हैं, जब भी वो फुल फिल्म करते हैं और उसमें जो मज़ा मिलता है उनको एज अ कंपोज़र, शायद किसी फिल्म में उनका एक आइटम गाना हो, हिट भी हो जाए तो उतना मज़ा नहीं आता। सो आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस। All right. I think with that, now we come to the close of this question answer session. Thank you very much. And I'd like to once again especially thank ठीक 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 वो जा रहे हैं। शान इज गोइंग नवीन आई एम लिविंग सम कोई और जो तो को लगता है बुला ले, गजेंद्र जी को बुला ले, चेहरे के बीच में रख दो, राकेश जी सर प्लीज बैठिए ना, पीछे जाओ यार, सब पीछे जाओ, पीछे जाओ, सब पीछे जाओ साथियों। रोल करो, आज 2 मिनट साइड करने का। ये बंद करो, हाँ 2 मिनट, एक रोलिंग। गजेंद्र जी, इतनी सारी शख्सियत और एक नई तरह की जिम्मेदारी, आर यू नर्वस? नहीं, बिल्कुल एक नई एक तरह अलग जिम्मेदारी, एक और मैच्योर जिम्मेदारी है, तो ये निभाने के लिए बहुत समय लगा। लेकिन मुझे लगता है कि हर जीवन में मेरे एक पड़ाव आया है जहाँ पे एक नए तरीके से सीख करके अंताक्षरी किया, सारेगामा किया, सारेगामा प किया, मुकाबला किया, उसी तरह से मतलब इस चीज़ को करने का मौका मिल रहा है मुझे। तो मैं बहुत नर्वस भी हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ, और आप लोगों के आशीर्वाद की पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग, हमारे गुरुजनों का सहयोग है हमें, तो मुझे लगता है कि हम अपनी मंजिल को धीरे धीरे छू लेंगे, पार कर लेंगे। कंपैरिजन भी होगा अगर हम बात करें म्यूजिक एकेडमी की, और भी एकेडमी है जो कई सिंगर चलाते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कंपैरिजन भी होगा, और क्या खास रखा है आपने एकेडमी में कि बाकी एकेडमी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उनसे जुदा लगे? मुझे लगता है कि सबने अपनी अपनी कोशिश की है, सबने अपने अपने तरह से मतलब पहचान बनाने की कोशिश की है, सिखाने की कोशिश की है। और जैसे कॉलेज होते हैं कि एक कॉलेज होता है, फिर दूसरा कॉलेज आता है, फिर तीसरा कॉलेज आता है, चौथा कॉलेज आता है, और कभी कमी महसूस नहीं होती है। उसी तरह से एकेडमी है, मतलब मुझे लगता है कि जितने एकेडमी खुल जाएं उतना कम है। म्यूज़िक सीखना, म्यूज़िक जानना बहुत हमारे लिए गौरव की बात है, बहुत हमारे लिए प्राउड की बात है कि जितना हम सीखेंगे उतना और अपने आप को कल्चर्ड होंगे, उतना अपने आप को तैयार होंगे, उतना हम एक और मतलब अपने आप को तैयार करके किसी और दुनिया में जा सकते हैं। मुझे लगता है जिसके पास म्यूज़िक है फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकता वो इंसान, कभी अपने आप में गलती नहीं कर सकता। सर आप गजेंद्र सर, और एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए कोई ऑडिशन होगा या फिर किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं कोई भी स्टूडेंट इस अकेडमी? मुझे लगता है कि पूरा प्रोसीजर है। आप अगर हमारी साइट पे जाएंगे, पूरा देखेंगे तो कैसे आप उसमें मतलब अगर टेस्ट देना चाहते हैं, कैसे उसमें मतलब क्वालिफिकेशन है, कैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, फिर आपका कैसे सिलेक्शन होगा, तो हर लोगों के लिए सीखने के लिए कुछ ना कुछ है इसमें। गरीब बच्चे हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते और जिनको म्यूजिक सीखने की चाह है, उसके लिए आपकी एकेडमी का क्या योगदान है? मुझे लगता है उनके लिए हमारी पहली सोच है, उनके लिए हमारी पहली सोच है कि उन बच्चों को जो टैलेंटेड हैं, जो एकेडमी में मतलब आना चाहते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये सारेगामा एकेडमी उनके लिए पहली बनी है। उनको हम टैलेंट करेंगे, उनको ढूंढेंगे, उनको तराशेंगे, और उनके लिए हम मतलब वेलकम उठा करके लेकर के आएंगे कि हम सारी सुविधाएं देंगे कि हमारे यहाँ सीख करके आगे बढ़ेंगे।
देखिए, एकेडमी का मतलब हम बॉलीवुड से नहीं जोड़ रहे हैं। म्यूज़िक इतना वास्ट है, म्यूज़िक इतना बड़ा है कि मुझे बॉलीवुड बहुत छोटा नज़र आता है उसमें। तो हम म्यूज़िक को मतलब सिखाने की अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने माध्यम से, हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से जितना कुछ हम दे सकेंगे उतना हम देने की कोशिश करेंगे। फिर वो बॉलीवुड में जाएं, फिर अपना पर्सनल करियर बनाएं, फिर वो क्लासिकल में जाएं, जहाँ भी उनको जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कंपोजिशन में जाना चाहते हैं, लेकिन म्यूज़िक हम उनको सिखाने के अपने गुरुओं के माध्यम से कोशिश करेंगे। अनूप सर, आप किस तरह से जुड़े हैं इस इंस्टीट्यूट के साथ और क्या खास बातें देखते हैं कोई भी स्टूडेंट में अगर वो एडमिशन लेना चाहे? संगीत अगर सही तरीके से सिखाया जाए तो वो जो स्टूडेंट है उसके अंदर एक खास प्रतिभा जन्म ले लेती है। वैसे तो म्यूजिक जो है वो एक गिफ्टेड चीज है। आप किसी को लता मंगेशकर नहीं बना सकते, लेकिन आप किसी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना सकते हैं। 2-4 बार फेल होगा लेकिन डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बना सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी तो नहीं बना सकते भाई, ये तो बन के आते हैं। लेकिन उसके बाद जो तराशना होता है वो काम एकेडमी का होता है। यहाँ पर वही आएंगे जिनके अंदर टैलेंट है, और जिनमें टैलेंट नहीं है हम उनको कह देंगे नमस्ते मत आइए, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो एकेडमी है नहीं। ये इसलिए बन रही है कि हम इंडस्ट्री को और फिल्म वर्ल्ड को, म्यूज़िक वर्ल्ड को कुछ अच्छे सिंगर्स ट्रेंड करके दे सकें। तो हम ऐसे लोगों को लेंगे ही नहीं जिनमें कुछ है ही नहीं, वो उनमें वो हीरा ही नहीं है, तो हम तराशे कैसे? तो हम हीरे लाएंगे, उनको तराशेंगे और फिर आपके सामने पेश करेंगे। और सर, म्यूज़िक के बहुत सारे जॉनर्स हैं, तो क्या सभी जॉनर्स में उनको ट्रेन किया जाएगा या फिर एक पर्टिकुलर जॉनर पर फोकस किया जाएगा? जैसे कि कोई अगर शास्त्रीय संगीत में निपुण है तो सिर्फ उसके बारे में सिखाया जाएगा या फिर सारे जितने भी जॉनर्स हैं म्यूज़िक के सबके बारे में सिखाया जाएगा? शास्त्रीय संगीत तो हर एक को सिखाया जाएगा। जैसे ABCD तो सबको ही सिखाई जाती है, फिर वो इंग्लिश बोलने लगता है। अब वो इंग्लिश में कुछ भी करे, तो एक बार शास्त्रीय संगीत को सिखाया गया तो उसकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि वो मुन्नी बदनाम भी गा सकते, कुछ भी गवा लीजिए। उससे मन तड़पत हरि दर्शन को आज भी गवा लीजिए और मुन्नी बदनाम ये भी गवा लीजिए। तो वो तभी संभव है जब हम उसको एक ख़ास तरीके से ट्रेन करें, और वो ट्रेनिंग क्लासिकल के माध्यम से ही हो सकती है। आज तक जिन लोगों ने क्लासिकल सीख के इस फील्ड में आने की कोशिश की है, उन्होंने मरते दम तक गाना गाया है, वो टिके। और वही हट गए हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत बिना सीखे पैर जमाने की कोशिश की है। तो हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम सही सीख के आएँ, क्योंकि वही देर तक चलने वाला है। ललित जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? किस तरह के मतलब क्या प्रिपरेशन होने वाली है अगर आप म्यूज़िक सिखाना चाहें स्टूडेंट्स को? म्यूज़िक सिखाना चाहें स्टूडेंट? स्टार्ट। ओके जी सर, किस तरह से जुड़े हैं आप इस इंस्टीट्यूट के साथ और क्या तैयारियां होगी उनको सिखाने के लिए? देखिए, इंस्टीट्यूट तो गज्जी का है और हम सब प्यार से जुड़े हुए हैं उससे, और इस प्रकार से जुड़े हैं कि जो नए कलाकार हैं उनको हम अपने हिसाब से मदद कर सकें। जैसी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हो उनको सिखाने की, या जो भी हमारा सपोर्ट हो, मॉरल हो या ट्रेनिंग का हो, हम ये सब करेंगे। और जहाँ तक सीखने का सवाल है, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता है। हर जो म्यूज़िक सीखने वाला होता है उसमें कुछ अच्छाइयाँ किसी हिसाब से ज़्यादा होती हैं और कुछ हिसाब कम हो जाता है। ये उनमें भी होता है, ये हम सिखाने वालों में भी हो सकता है, और हम भी सीखने वाले हम में भी हो सकता है। ये होता ही है, क्योंकि जैसा खान साहब ने कहा और हम सब समझते हैं, म्यूज़िक जो है अनंत है। जैसे नॉलेज अनंत है, आप कितना भी चाहें, आप जितना आगे जाएंगे आपको नज़र आएगा कि और बहुत बाकी है। तो वो इंटरेस्ट लेवल जो है और जो सीखने की एक चाह है, वो किसी लेवल में भी होनी चाहिए, चाहे आप कहीं किसी मुकाम में पहुंच गए हों या नहीं। हर इंस्टीट्यूट। ललित सर, मुझे आपसे पूछना था कि संगीत के नए दौर को आप कैसे देखते हैं? जो पुराने समय में एक संगीत जो चला आ रहा था और आज रैप म्यूज़िक को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, पंजाबी को, तो ये जो दौर बदल रहा है संगीत का, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो दौर बदल रहा है ये साबित नहीं करता है कि ये गाने बुरे हैं या ये कंपोज़र बुरा है। वी ऑल वर्क अंडर
restricted guidance of a director who's thought of the situation of the film and thought of the kind of music that suits his film. So we are all guided in that little stream and little road where we have to deliver to the director of what he has thought. So a lot of things lie in those situations that songs are composed on. अभी भी जब कोई मुकेश भट्ट या महेश भट्ट जैसी पिक्चरें बनाते हैं, वो खुद अभी भी बनाते हैं, तो वो पूरा मेलोडियस म्यूज़िक ही लेते हैं और मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा चलता है अभी भी। तो जो मेलोडी है, जो सुरीला म्यूज़िक है, जो रोमांटिक म्यूज़िक है, आप 10 आइटम गाने दे दीजिए, बिल्कुल ठीक बात है, मगर उसमें जब एक रोमांटिक गाना आप देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा चलता है। तो ये क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वो गाना आपके दिल में असर करता है। तो म्यूज़िक वो होता है जो किसी भी हिसाब से आपके दिल में उसका असर करे, या उसकी एनर्जी असर करे, या उसके खूबसूरत नोट असर करे, या गाने वाले की के जो वॉइस है वो असर करे, या सब एक मिल के एक बात बन जाए। तो और मैं ऐसा सोचता हूँ, और मैंने इस चीज़ में थोड़ा और लोगों से भी बात किया, जब गाना भागता है और उसके जो मीटर है, उसके वर्ड्स जब भागते हैं, तो उसमें एक डेप्थ वाले नोट बनाना बड़ा मुश्किल होता है। वो मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि जब आप वर्ड्स भगा रहे हैं और जब आप तेज़ जा रहे हैं तो उसमें ठहराव कैसे आप ला सकते हैं। मगर अगर आप उस चीज़ को मिक्स कर लें किसी हिसाब से, कुछ एक वेस्टर्न के साथ एक इंडियन चीज़ भी आ जाए, और कहीं एक स्टैंडिंग नोट आ जाए या कुछ एक गायकी आ जाए, तो वो चीज़ में पुख्तली आ जाती है, एक सॉलिड चीज़ हो जाती है। तो ये करने की कोशिश करना चाहिए, और ये करना मुश्किल होता है। जैसे मुन्नी बदनाम गाना है, भागे जा रहा है, मगर वो उसमें एक कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो उसकी एनर्जी में मज़ा आया लोगों को, और वो सॉन्ग ऑफ द ईयर बना। और मेलोडियस आजकल के जो गाने हैं वो जब एक ठहराव के साथ आते हैं तो वो स्टैंड आउट करते हैं इतने डेस्परेट म्यूज़िक में कॉल। तो इस चीज़ में सोचना चाहिए, और मैं सोचता हूँ कि डायरेक्टर्स का इसमें बड़ा हाथ होता है, और उनको सोचना चाहिए कि क्या हमारी फिल्म का म्यूज़िक हो। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, सिखाने के अलावा आपको जज भी करना होगा, तो ये आपके लिए कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए, जज करना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप भी जज कर सकते हैं। अगर 4 सिंगर आपके सामने गाएं तो उसमें से एक अच्छा कौन है, ये आप हमेशा बता सकते हैं। आपको कोई म्यूज़िक की कोई बहुत महारत हासिल ना हो, मगर आपको कोई अच्छा गाएगा तो आपको ज़रूर फील होगा कि नहीं, इसमें कुछ बात है, ये अच्छा गाया है, इसका सुर भी अच्छा लगा है, चाहे आपने म्यूज़िक ना सीखा हो। तो वो मुश्किल काम तो नहीं होता है। मुश्किल काम ये होता है कि उसकी खामियां वो क्या क्या कर रहा है। आप जब वो पता कर लेते हैं तो आप में थोड़ी म्यूज़िक की जानकारी होती है। आप ख्वाब, ख्याल, ख़याल, ये कौन ठीक बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, कहाँ प्रोनंसिएशन गड़बड़ हो रही है, या ये तक कि गाने के वर्ड गड़बड़ अगर गाए हों, तो ये सब की जानकारी के लिए तो फिर वो तो एक विजडम वाली बात है। आप जितना इस पे डूबे हों वो उतना आपको साफ नज़र आएगा कि दूसरा कितना मिस्टेक कर रहा है। तो बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। थैंक यू। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.